Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. Before we start up with the session, I thank you, Purushottam Khandelwal sir, Central Council member, to be present here. Also, thanks Sandeep Engineer sir, President of GCCI, and also Direct Tax Committee Chairman Janikbhai Vakil to be present, to be associated with ICAI Ahmedabad, to have this great session here. Thank you so much for your presence, sir. And before we start with Girish Ahuja sir's session, I would just like to introduce him in a brief, and then we again start with this session. Girish Ahuja sir is practicing as a chartered accountant mainly in the field of direct taxes. He was nominated by the Government of India as member of the Task Force for Redrafting of Income Tax Act and New Income Tax Laws, and the report thereto was submitted to the Finance Minister on 18/8/2019, nominated by the Government of India as independent director to the directors of State Bank of India for 2 terms, nominated by the government with the approval of the Supreme Court to the board of the directors of Unitech Limited, appointed as the independent director on the board of Ruchi Soya Industries Limited, appointed as the independent director of other 3 limited companies. He has been nominated member of the high-powered committee constituted by the Government of India under the chairmanship of Justice A.P. Shah, Chairman Law Commission, to look into issue of applicability of MAT provision in the case of foreign companies and FIIs, and any other issue relating to the applicability of direct tax provision which may be referred to it by the government CBDT from time to time. He has been author of over 25 books on direct taxes, both for students and the professional, including a concise commentary on direct taxes, compendium of issues on income tax and wealth tax, direct taxes, reckoner, direct taxes, laws and practices. He is guide to TDS, taxation of capital gains. He has been consultant on tax matters to various industries and non-profit making organizations. He has been a president of SRCC Alumni Association for over 20 years. With these brief details, I welcome you, sir, to this session. I welcome you to this podium, and the dais is all yours, sir. Sitting on the dais, President of GCCI, Shri Sandeep P. Engineer ji, Central Council member, a very dear friend to me, of course, CA Purushottam Khandelwal ji, Chairman of the Ahmedabad branch, CA Sunil Sanghvi ji, Janik Vakil ji, past Chairman, of course, of Ahmedabad branch, and now Directorship Committee Chairman of GCCI, Sunil Shah ji, the Secretary of the branch, sitting in front of me, Neeraj Agarwal ji, Vice Chairman, Abhinav Malviya ji, and of course Samir Chaudhary ji, sitting there. 2 gentlemen who are also contesting, along with, of course, Mr. Purushottam Khandelwal, Mr. Vikas Jain, and Chintan Patel. I have to mention their name, but so then Durgesh Bhai, past President of GCCI, and Harit Dhariwal, past Chairman of Ahmedabad branch. Ladies and gentlemen. Well, friend, regarding this budget, I don't know whether you like it or not, but some points are really very good. You will have to appreciate that during the course of discussion. The first point which I want to talk to you is, people were taking the advantage of buyback of share. You know, when you go for buyback of share, as per Section 68 of the Companies Act, the company has to pay tax at the rate of 20%, plus surcharge 12%, plus education tax 4%. But if they distribute dividend instead of buyback of share, probably the government will get 30% plus surcharge and plus, of course, education tax. So there was a difference of 9 to 10%, and everybody was trying buyback of share. Not only unlisted, even listed company. I remember when we redrafting the law, वो तो आप सुना है दोबारा रीड्राफ्ट होगा, तो हमने बना के क्या दिया था, अब ड्राफ्ट करना है. हमें भी 6 महीने दिए थे, हमने 2.5 साल लगाए थे, अभी भी 6 महीने दिए हैं, 2.5 साल ही लगेंगे, और फिर आएगा नहीं आएगा, nobody knows. So what I'm trying to explain is, when already that bill, आपके पास वो act पड़ा हुआ है, bill पड़ा हुआ है, complete written, you know, there are 550 sections in Income Tax Act.
And we brought down to 264 sections without any proviso. And that is already there. The working has been done for 2.5 years. And you say we will come out with a new bill. When will you come out? I don't know. देखेंगे वो तो चलिए. अब बाईबैक में क्या था सर? 10% का गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हो रहा था. And buyback is allowed both in the case of unlisted company और listed company में तो हमने शुरू किया था क्योंकि at that particular point of time listed company neither the company was paying tax nor the shareholder was paying tax because shareholder was exempt under 1038 and company was not paying for buyback of share. Now we started 115 QA saying that company will pay tax. Now section 115 QA has been abolished. Nothing doing. Whatever amount you receive from the company on account of buyback of share, amount so received will be treated as deemed dividend under section 2 clause 22F. क्या बोला उन्होंने? Whatever amount you are receiving, suppose you had bought share for 100 rupees. Today the value is 1,000 rupees. The entire 1,000 rupees which you are going to get on buyback of share will be your dividend income. The entire amount of 1 lakh. Somebody said, what about my cost? There is a cost involved also, 100 rupees or so. What about my cost? You are saying entire amount. Yes, entire amount will become taxable as dividend and no deduction will be allowed under section 57 on account of any expense. पूरा का पूरा 1,000 आपको टैक्स देना है. वो कहता कॉस्ट का क्या होगा? कि तो रुकिए. The consideration price of this will be taken as nil. जब consideration price nil होगी, cost आपकी 100 होगी, then 100 will be a capital loss. आप बात समझ रहे मैंने क्या कहा? The entire 1,000 rupees which you have received is your income, taxable under the head income from other sources as dividend. It is dividend. But I had incurred expenditure of 100 rupees when I bought that share, no problem. That 100 is your cost. The consideration price will be taken as nil, deemed as nil. So nil minus cost, 100 will be a loss. And that will be treated as a capital loss, which you can set off under 74 from other capital gain or maybe carry it forward. ये क्लियर कर दिया है कि जितना पैसा बाईबैक में मिलेगा, अभी टाइम है 1 अक्टूबर 2024 से लगेगा. सो जिसने बाईबैक करना है 30 सितंबर तक अभी भी चांसेस हैं. एंड इफ यू बाई बैक यू सेव 9 to 10% ऑन दैट. लेकिन याद रखना, अगर पिछला बाईबैक का भी 1 साल नहीं हुआ तो बाईबैक नहीं कर सकते हैं. सो बाईबैक इज ओनली अलाउड आफ्टर 1 year and it is allowed to the extent to 25% under section 68 of the Companies Act. So if you want, I'm receiving many calls, sir buyback कर ले. मैं क्या 30 September तक तो allowed है. It is not allowed from 1st of October 2024 because that section is going to be abolished and the entire amount is going to be treated as your dividend income. Clear हुआ sir? क्योंकि अब ये dividend है, section 194 says you will have to deduct the TDS on that dividend at the rate of 10% because earlier section 194 was for section 222A, B, C, D and E. Now it is F also covered under section 194 and you will have to deduct TDS, company will have to deduct TDS at the time of making payment of buyback of share. So please, they have now closed the door on buyback. You can do buyback, but it is going to be treated as profit in the hands of, dividend in the hands of the shareholder. Clear, sir? This is the first point which they have touched it. This is called section 2, clause 22, subclause F, read with, of course, section 115 QA, read with section 194, and read with section 57, no deduction. Clear? This is the first thing they have done it. Second thing, some people are appreciating, some are not appreciating. I remember wherever I had gone in the last 1 month, and they were asking your expectation, I told them that rate of tax of long-term capital gain from 10% in case of market will be raised to 15%, and for short-term capital gain,
it will be from 15 to 20%. I said that. They said, how can it be possible? I said, the market is going up like anything. And at this particular point of time, they will be able to absorb this amount. They will be able to absorb. तो market में सबने कमाया है. थोड़ा दे दिया सरकार को तो क्या हुआ? तो they will absorb it. And exactly the same has happened. But instead of 10 to 15, they have taken it 10 to 12.5%. For long-term capital gain, 112A. बाकी बता रहा हूँ मैं. And short-term capital gain, 111A, has been raised from 15% to 20%. और ये तो पूरी जगह शेयर वाला मार्केट है जो सारे इन्वेस्ट करते हैं. सो बी केयरफुल नाउ. शॉर्ट टर्म कम करिए, लॉन्ग टर्म करिए. शॉर्ट टर्म में 20 पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में 12.5 पड़ेगा, एंड यू विल बी एबल टू मेक मोर मनी इन दैट केस. लेकिन nobody knew that they are going to do the rate of tax for long-term capital gain for all other asset also 12.5%. कुछ सोचा था? For all asset it is going to be 12.5%. The moment I saw that, immediately I told them, indexation गया. हम इंस्टीट्यूट में बैठे थे, मैंने कहा इंडेक्सेशन गया, और वही हुआ. They have removed indexation completely. But one thing has been kept, that if you have bought an asset before 1st April 2001, you can take the market value of that asset on 1st April 2001. But after that, no indexation. No indexation. लेकिन सबसे बड़ा काम क्या किया? Section 2 clause 42A. पहले when you had to calculate the short-term capital gain or a long-term capital gain, एक्ट में क्या लिखा है? Long-term capital gain is a gain arising from long-term capital asset. Section 229B. Section 229 says short-term capital gain is a gain arising from short-term capital asset. फिर Section 242B कहता है long-term capital asset is one which is not a short-term capital asset. अभी तक कुछ समझ में आया? समझ में आ गया 242A. What is a short-term capital asset? और पहले था 12 months, 24 months, 36 months. Am I right, sir? 12 months for listed shares other than unit or unit of equity oriented fund and business trust, it was 12 months. For unlisted share and for immovable property, it was 24 months. Hold more than 24, long. Don't hold for more than 24, short. Or third tha, any other, 36 months. Now simplified. All listed securities, including units, all listed securities, period is 12 months. More than 12, long, not more than 12, short. And all other asset, whatever that asset may be, 24 months. अब 36 months वाला proposal खत्म हो गया. हमने तो जिंदगी भर 36 months ही सुना था, अब 24 months हो गया. So 24 months के बाद बेचेंगे तो it is a long-term capital gain. ये 242A से शुरू हुआ. अब आ गया 111A, short-term capital gain in case of shares and in case of unit of a mutual fund and in case of business trust raised from 15% to 20%. ठीक है? Long-term capital gain for all assets, raised from 10%. Now, for listed share raised from 10 to 12.5%. For all other assets, brought down from 20% to 12.5%. Indexation नहीं मिलेगा. कई बहुत नाराज हैं, कई बहुत खुश हैं. एग्जाम्पल देता हूं, तब आपको क्लियर होगा. Those who have acquired the land before 2001 or nearly 2001, at that time the price of the land was very low. It has jumped after COVID. Am I right or not? The prices have gone skyrocketing high. अब क्या है? Suppose आपने उस वक्त प्रॉपर्टी ली थी 5 लाख रुपीस की, एकड़ की. Let's say कुछ वो भी जो भी ली 5 lakh, 10 lakh, 20. You may take it 10 lakh. Market value of that on 1st of April was 10 lakh if you have acquired before 2001, or if you have acquired, you know the market price. It was 10 lakh. Now if you index this 10 lakh, it is 3.63, sir. It is 3.63. 3.63 will work out to 36 lakh 30,000. And today the price of the land may be 20 crore or 10 crore or 15 crore.
And now if you work out on 10 crore, after taking a deduction of 36 lakh 30,000, you have to pay 20%. अब क्या है? सिर्फ 10 लाख लेस कर दीजिए, अगर 9 करोड़ 90 लाख आया, तो टैक्स इतना लग रहा है? 12.5%. The people are very happy. Those who have acquired land in the past, those who have acquired property in the past, when the prices were very low, today if they sell it, there is a huge amount of capital gain. And if they index it, the indexation is only of the cost. And how much is the indexation? 3.63% of the cost, times of the cost. उसको करो ही ना इंडेक्सेशन और कमा लो जितना कमाना है, और 12.5% में तो कुछ भी नहीं होता है. अब तो सब प्रॉपर्टी वाइट में बिका करेगी. अब क्या जरूरत है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे बेचो, सेल इट फॉर मोर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड पे टैक्स एट द रेट ऑफ 12.5%. सर इससे अच्छा कुछ नहीं है. आपको 12.5% में आपका कैपिटल बन रहा है, which you are not there at any particular point of time. वो कैपिटल 20% में बनता था, 20 प्लस सरचार्ज, ये 15%, 12.5% पर सरचार्ज पे बन रहा. सो पीपल आर वेरी हैप्पी. लेकिन गोल्ड वाले को नाराज हैं, क्योंकि प्राइस एट द गोल्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑन 1 January 2001 वर अराउंड 4,700. If the index today 3.6, लेकिन the price of the gold has gone so high, हो सकता है उनको नुकसान हो, लेकिन बहुतों को फायदा भी होगा. Because they are going to convert, I mean, if you sell gold, you get a big amount, and the entire amount is going to be taxed at the rate of 12.5%. Earlier, after indexation, it was 20%. Now you will have to work out on the sheet of paper whether 20% was better or 12.5% was better. Most of the cases you will find, if there's old asset, 20% was bad, 12.5% is better. Because 12.5% will work out to conversion of money, and you that carry this money home and share में लगा दीजिए. आजकल तो कमा ही रहे हैं सब, लेकिन रुक जाना. उन्होंने कहा कि हमने 54F तो नहीं करा, लेकिन 54 में नुकसान होगा. मैं एक एग्जांपल देता हूं. सपोज यू हैड बॉट द लैंड फॉर 2 करोड़. ओके सर, index cost is 3 crore. You have sold it for 5 crore stamp duty value. So how much is the capital gain? 2 crore. 5 minus 3 index cost. For 54, you have to invest only 2 crore. Am I right or wrong? 2 crore. And you are taking home 3 crore, 2 as a cost and 1 crore as the index cost. 3 करोड़ घर चला गया, 2 करोड़ में आपने लगाया और आपको एग्जेम्पशन पूरी मिल गई. लेकिन अब क्या होगा? कैपिटल गेन विल बी 3 करोड़. अब आपको 3 करोड़ लगाना पड़ेगा. घर पे सिर्फ कॉस्ट ही लेके गए और इंडेक्स वाला बेनिफिट आपको नहीं मिला. आपको 3 करोड़ लगाएंगे तो 54 पूरा मिलेगा. Am I right or wrong? 54 you will get the benefit only to the extent of the capital gain. And this time the capital gain without indexation is going to be more. And since it is going to be more, you want to take a benefit of 54, you will have to invest the entire capital gain. लेकिन 54F वालों को फायदा हो गया. 54F को लैंड बेचकर अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कैसे फायदा हुआ सुनिए. अगर मेरा कैपिटल गेन 2 करोड़ था और मैंने पूरा 5 करोड़ लगाया, तो मुझे बेनिफिट कितना मिलता था? 2 करोड़ का. अब कैपिटल गेन कितना है? 3 करोड़. और मैंने 5 करोड़ लगाया, मुझे बेनिफिट कितना मिला? 3 करोड़ का मिल गया. Are you noticing the point? 54F has become beneficial and 54 has become disadvantageous. ये सोचना पड़ता है कि 54F में कितना फायदा हो गया. क्योंकि when you taking the benefit, you are to supposed to invest the entire consideration price. घर तो कुछ ले ही नहीं जा सकते, उसमें तो घर ले जाना था ना. 2 के बदले 3 घर ले जा रहे थे. यहाँ तो 5 का 5 लगाएंगे तो बेनिफिट पूरा मिलेगा. हमने 5 का 5 लगाया, 2 करोड़ का बेनिफिट मिला. अब 5 का 5 लगाएं, 3 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ये कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा हर आदमी के व्यू पॉइंट से. It may be beneficial, some may be loser in this point, most of them are going to get benefit. अब कौन लगाएगा उसमें 54EC में 50 लाख? अरे 12.5 दो, जान छोड़ाओ. Who will invest in 50 lakh in the 54EC? Nobody will be interested in 54EC. वहाँ लगा के 5.5% लेना है और बाजार में 8% मिल रहा है, तो क्यों आप लगाएंगे 5 साल के लिए 2.5 into 5 लूज कर रहे हैं. 12.5 सीधा दो और आप 54EC लो ही ना. Am I right or wrong?
You have to be very careful while taking a decision that in the view of this. अब एक और प्रॉब्लम आ गई, ये 23 जुलाई से शुरू हुआ, क्योंकि आप ये तो कह नहीं सकते कि पुरानी डेट का भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। 23 जुलाई से हुआ। Those who have sold a share before 23 July, they are going to pay 10%. Those who have sold share after 23 July, they are supposed to pay at 12%. मेरे पास एक परसों आ गया, सर क्या हुआ, 22 को मैं प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जा रहा था, सर बहुत बारिश हो गई, जा नहीं सका, अब क्या करूं। मैं क्या अब क्या करें, अब तो तेरे को नया लॉ लगना है और नए लॉ में ना इंडेक्सेशन मिलना है और तेरे को ये बेनिफिट। तो मेरी पॉइंट इज यू हैव टू सी आपको क्या फायदा हो रहा है या आपको क्या नुकसान हो रहा है, ये आपको वर्कआउट करना है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो 12.5 किया है तो उसमें जो एग्जेम्पशन लिमिट भी 1 लाख हैज बीन रेज्ड टू 1,25,000। छोटे आदमियों को छोड़ दिया, बाकी बड़े आप लोग के आदमियों के लिए क्या फर्क पड़ता है, 10, 2, 12.5, 2 कोई फर्क नहीं पड़ता। द मार्केट हैज एक्सेप्टेड इट। टुडे थोड़ा डाउन है, मैं देखने लगा था कि बोलूं कि मार्केट हैज एक्सेप्टेड इट, देखा कि नहीं आज थोड़ा डाउन है, तो इसलिए मार्केट हैज पार्शली एक्सेप्टेड इट। But let me tell you, nothing is going to happen. The market will accept it. Market will definitely accept it. मैं एक पॉइंट भूल गया, जो बाई वाइक में ये होता था ना, ये फॉरेन फंड्स वाले बहुत तंग कर रहे थे। फॉरेन फंड्स वाले कहते थे whenever there is a buyback, we get money, okay, buyback में दे देते हैं, लेकिन who pays the tax? Company pays the tax. And company pays the tax, so whatever money we have earned in our foreign country, they were taxing the difference between the purchase price and the seller price as capital gain. वो कहते थे टैक्स आपने थोड़ी दिया है, टैक्स तो कंपनी ने दिया है, you will not get the credit of that tax. Now, in the case of foreign funding, if they buy back the share, that will be treated as dividend, and since it is going to be treated as dividend, the tax will be paid by the company here, and they will get the relief of tax credit in the foreign country. और साथ में टैक्स भी डिविडेंड पे जो देना है उन्होंने, वो तो ट्रीटी के हिसाब से देना है, and maximum tax in the treaty may be some case 10%, somewhere 15%, and somewhere 20%. So ये फॉरेन फंड की वजह से भी बहुत कुछ बाई बैक को शिफ्ट किया है। तो ये भी कैपिटल गेन जो किया, ये भी आपने नोटिस किया that it is whether foreign shareholder or Indian shareholder, how does it matter? The profit has been brought down to 12.5. Non-resident बहुत खुश हैं। Those who have property, suppose in Ahmedabad, they don't want to buy another property under 54. They don't want to buy. So they were saying that we have to pay 20% after indexation. It is a big amount. Now they will have to pay tax at the rate of 12.5%, maybe without indexation, but they get the entire money in their hand. And they can take away that money abroad also, because you are allowed under a $1 million outside every year. तो मेरा पॉइंट ये है, एंगल से नजरिया अलग अलग है, किसको बेनिफिट किसको लॉस, ये कैपिटल गेन में हुआ है। ये दिस वाज 242A रेड विद 111A, 112, 112A। मैंने आपको ये कैपिटल गेन का बताया, बट people have appreciated, most of the people have appreciated. There are certain people who have not appreciated because they had more of indexation benefit, and that's why they are losing, calculating at 12.5% without indexation, which was less on the basis of after indexation. That is the point. Clear, sir? Next point. I remember talking to everybody that old regime will go. I was saying everybody old regime will go. Rather, it was going last year also, but last year I went it and got it hold. Why? I said, please don't do it, because I get deduction under 80 QQB being a author, 3 lakh rupees, and I lose money on that. उन्होंने कहा, no, but you should not bother. मैंने कहा, but why are you interested in going to new regime? He says, one thing is there are people who are claiming deduction under 80C or 80D without depositing any amount. They are filing return, claiming deduction, because they know 98% returns are without scrutiny. And if the scrutiny is not there, they got the benefit. बहुत लोगों ने ऐसा किया, रिटर्न भरते हुए 80C क्लेम कर लिया, 80D क्लेम कर लिया, जमा कुछ नहीं कराया, क्योंकि प्रूफ तो कोई देना नहीं था, और सबको पता है 98% स्क्रूटनी में आना नहीं है,
तो एक काम तो ये करते हैं, और हुआ है, और आप सबको पता है कि भरने तो आप ही ने रिटर्न ने। और दूसरा क्या करते थे, कहते हैं जी 70% ऑफ HRA क्लेम्स आर बोगस। 70% आप सबकी रिटर्न भरते हैं और आपको पता कोई अपने फादर को दे रहा है, कोई अपनी मदर को दे रहा है, कोई ब्रदर को दे रहा है, कोई सिस्टर को दे रहा है, और कोई तो अपनी वाइफ को भी दे रहा है। कहता आने नहीं देती घर में कि पहले रेंट दो मेरे घर का। सर, दो जजमेंट हैं। There are two judgment in your favor that you can pay rent to your wife and it will be treated as HRA. ये कह रहे ये हो रहा है। मैं दूसरी बात बताओ, कहते ये सैलरी वाले दान बहुत देते हैं। देते ही सैलरी वाले, बाकी कोई दान नहीं देता। सब दे रहे हैं। पता लग गया आपको, इतनी हंसी क्यों आई? क्योंकि सबको पता है ये बोगस है। मैंने कहा वो तो कबीर दास लिख गए थे। कहते क्या लिख गए थे सर? चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घटे और नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए वक्त कबीर। मैंने धन घटा कहां? जितना दिया उतना ले लिया और बाकी डिडक्शन भी ले ली, तो धन कहां घटा? धन तो बढ़ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब वो वाला पॉइंट दिमाग में है कि हमें न्यू रिजीम लानी है, ओल्ड रिजीम को खत्म करना था। हिम्मत नहीं है, वो बताऊंगा क्यों, लेकिन इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ। अब जो भी एडवांटेज दे रहे हैं, दे आर गिविंग एडवांटेज फॉर न्यू रिजीम, नो एडवांटेज, नॉट अ सिंगल पेनी एडवांटेज फॉर ओल्ड रिजीम। ना स्लैब रेट चेंज किया, ना लिमिट ऑफ ATC चेंज करी, कोई भी लिमिट चेंज नहीं करी। इट इज द सेम थिंग, एंड वॉट एवर एडवांटेज दे हैव गिवन, इट इज ओनली फॉर न्यू रिजीम। वन एडवांटेज दे हैव गिवन, द स्लैब रेट। Earlier slab was 0 to 3, 3 to 6, 5%, 6 to 9, 10%, 9 to 12, 15%, 12 to 15, 20%, and about 12 lakh, 30%. अब क्या कर दिया? 0 to 3, nil. 3 to 7, 3 to 7, 5%. क्या फायदा हुआ? वो 6 से और 7 तक जो 1 लाख रुपया है, उसमें 10% लगता था, अब 5% लगेगा, तो एडवांटेज ऑफ 5,000. Then next slab is 7 to 10. अर्लियर होता था 6 to 9 और उसमें 15 लगता था, अब वो 1 लाख पर 10 लगेगा। सो 10,000 रुपये का फायदा हुआ हर आदमी को जो न्यू रिजीम में जा रहा है। टैक्स का 10,000 रुपये, इट्स नॉट टैक्स, सरचार्ज ऑल्सो, एजुकेशन ऑल्सो। और जो सैलरी वाले हैं उनको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज किया 50 to 75, इट इज ओनली फॉर न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में कोई एडवांटेज नहीं दिया। ओल्ड रिजीम रिमेन्स 50,000। एक टाइम था ओल्ड रिजीम में 50, न्यू रिजीम में 0। फिर टाइम है ओल्ड रिजीम 50, न्यू रिजीम ऑल्सो 50। नाउ टाइम है ओल्ड रिजीम 50, न्यू रिजीम 75। देख रहे हैं? न्यू रिजीम चाहिए तो आपको 15,000 रुपये का 25,000 का फायदा हुआ, तो 30% 7,500 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, दे आर गिविंग ऑल अट्रैक्शन टू द न्यू रिजीम। एक और अट्रैक्शन, contribution by the employer to national pension scheme, which was allowed 10%. Now it has been raised to 14%. But who for whom? Only for new regime. पुरानी regime में अभी भी 10 है, नए regime में employer 14% कर दे और आप उसको deduction मिल जाएगा under section 36 clause IVA, और उसको income मान ली जाएगी उसकी salary. But 80CC D2 में उसको वो deduction 14% मिलेगा। सो मेरा पॉइंट ये हुआ, ये भी तो न्यू रजीम का बेनिफिट है, ओल्ड रजीम का कोई बेनिफिट नहीं। लेकिन ओल्ड रजीम में हिम्मत नहीं है खत्म करने की। कारण बताऊं? ओल्ड रजीम में एक डिडक्शन एग्जेम्पशन है सेक्शन 1017 के, वो न्यू रजीम में नहीं है। वो सेक्शन 1017 क्या है? एनी डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस received by member of parliament or member of legislative assembly is fully exempt. समझ में आ गया? वहां पर exempt है, और नई रजीम में आएंगे तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। हमसे टैक्स मांग रहे हो? हम तो लॉ मेकर हैं, हम कैसे टैक्स दें? इसलिए वो 1017 का या तो वहां से हटाएं, नहीं तो ओल्ड रजीम कंटिन्यू करती रहेगी जब तक आपको 1017 का डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस माफ कराना है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और ओल्ड रजीम तो बिल्कुल बेकार है। आप भी सोच रहे होंगे बेनिफिट इज मोर इन द केस ऑफ न्यू रजीम देन इन दी ओल्ड रजीम। यू वर्क आउट, इट इज मोर। और जिसकी इनकम तो 2 करोड़ से ऊपर है वो तो बहुत खुश है, या 5 करोड़ से ऊपर है,
क्योंकि वो 37% 25% सरचार्ज हो गया. You know the 37 comes to 25%. वो तो he is very happy. He said nothing doing. क्योंकि आजकल तो शेयरों में कमाया बहुत है, शेयर का तो सरचार्ज मान लिया 15% है, लेकिन उसकी वजह से बाकी इनकम तो बढ़ गई. बाकी इनकम बढ़ गई तो उसके ऊपर तो सरचार्ज 37 होना था. यू आर पेइंग 25%. आई हैव वर्कड आउट, मेरे पास इतने लोग आए, उसकी इनकम पिछले साल 4 आ गई 5,78,00,000. उसकी क्या, मेरी थी वो, मैं क्या बताऊं. 5,70,00,000. ओल्ड रिजीम में गया तो टैक्स बहुत बन रहा था. मैं कहा न्यू रिजीम कैलकुलेट करके देख. न्यू रिजीम में 25 लाख रुपए टैक्स कम हो गया. किस वजह से? सरचार्ज, उसके बाद 234A, 234B, 230 सारा दल के कैलकुलेट कम हो गया. मेरे प्रॉब्लम वो नहीं थी, मेरा कैपिटल गेन ज़्यादा आ गया था, और कैपिटल गेन के अदर इनकम मिलाकर दैट क्रॉस्ड 5 करोड़. एंड मोमेंट इट क्रॉस 5 करोड़, यू हैव टू पे ऑन अदर इनकम 37% इन ओल्ड रिजीम, वेयर एज इट इज 25% इन न्यू रिजीम. अगर 2 करोड़ से ऊपर होगा तो कैलकुलेट करिए कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि सरचार्ज 25 से 12% एक्स्ट्रा उसमें टैक्स पड़ता है. दैट कम्स आउट टू 11 to 12 लाख रुपीज. सो मेरा पॉइंट ये है, यू हैव टू वर्क आउट एवरी टाइम. जब भी रिटर्न भरिए एक बार डालिए ओल्ड रिजीम टैक्स, न्यू रिजीम टैक्स. आप लोग सोचेंगे 90% न्यू रिजीम विल बी बेटर. आपका वर्कआउट करता है कंप्यूटर में, जब आप करते हैं तो वर्कआउट करता है. इफ इट इज ओल्ड रिजीम व्हाट इज देयर, इफ इट इज न्यू रिजीम व्हाट इज देयर, एंड यू विल फाइंड 2/3 रिटर्न जो आ गई पिछले साल वो न्यू रिजीम वाली आई है. इस साल तो और ज़्यादा हो जाएंगी. क्यों? 31 जुलाई तक आप भूल जाएंगे कि ओल्ड रिजीम में ऑप्ट करना है, तो अपने आप न्यू रिजीम में आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट. इफ यू डोंट ऑप्ट फॉर ओल्ड रिजीम बाय 31 जुलाई, वेयर आर यू? अंडर न्यू रिजीम बाय डिफॉल्ट. सो मेरा पॉइंट है, न्यू रिजीम में अब फायदा हो रहा है, एंड दे वांट टू डिसकंटिन्यू, बट रीजन बेस्ट नोन टू देम विच आई हैव टोल्ड यू, दे डोंट वांट टू अबॉलिश द ओल्ड रिजीम. लेकिन मैंने इस बार सोचा था सर, और मैंने उनको कहा भी, कल सारे आए हुए थे, CBDT चेयरमैन एंड TPL. I said, sir, there is a new regime for company, there is a new regime for cooperative society, there is a new regime for individual, HUF, AOP, BOI, artificial jurisdictional person. There is only one kind of a person where new regime नहीं है, और वो है पार्टनरशिप फर्म. इनके लिए क्यों नहीं किया? बाकियों के लिए न्यू रिजीम है, तो वाई नॉट फॉर पार्टनरशिप फर्म? क्योंकि आजकल तो लोग LLP और पार्टनरशिप फर्म में जा रहे हैं. I said you should have reduced 30% to 25%, including surcharge, जैसे बाकियों का किया है. कर दीजिए ना वो वाला, देखेंगे, मतलब कर देंगे, अगली बार होगा, ये बता दो. पार्टनरशिप फर्म के लिए भी न्यू रिजीम आएगी. फर्क क्या है? नो डिडक्शन, नो. तो पार्टनरशिप फर्म को उनको इतना नुकसान नहीं हो रहा ना, कि पार्टनरशिप फर्म को ATC-DD थोड़ी मिलना है, उनको तो सिर्फ ATIA, ATIB वगैरह वो मिलना है. सो दैट्स वाई दे आर होल्डिंग ऑन. बट कंपनी के पास तो न्यू रिजीम आई है. व्हेन न्यू कंपनी इज देयर. मुझे एक बहुत दुख हुआ है सर इस बार, जो वो 15% वाली कंपनीज थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दोज हु आर लायबल टू पे टैक्स एट 15%, उसका सनसेट 31 मार्च 2024 था. आई टॉक टू देम एट दैट टाइम व्हेन दिस वाज इंटरिम बजट आया, कि सर इसको रेज नहीं, आपने एक्सटेंड नहीं किया, बाकी तो एक्सटेंड कर दिए 31 मार्च को 24 को. उन्होंने कहता कि अब ये हम एक्सटेंड करेंगे तो लोग इंडस्ट्री लगाना डिले कर देंगे. लेट देम कंटिन्यू, आफ्टर दिस वी विल अलाउ यू. बट दे हैव नॉट गिवन एनी एक्सटेंशन. प्लीज, no extension. Now if you start any manufacturing organization after 31st March 24, kindly note you have to pay 22% plus surcharge. अब वो 15% वाला नहीं होगा. They should have done it. Yesterday भी मैंने कहा सर 1 साल तो और बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो 1 ही साल मिला. आई डोंट थिंक वेदर, मेरे को आइडिया नहीं करेंगे या नहीं करेंगे. अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. कमिंग बैक, तो ये भी हो गया. अब देखिए मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कर दिया, आपके पास 36(1) भी कर दिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ 14%, ATCC-D2 भी कर दिया. बहुत उम्मीद थी सर, मैडम ने प्रॉमिस किया था CA के फोरम में कि जो 43BH है वी विल डेफर इट फॉर 1 ईयर. ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्टर की गारंटी थी और नहीं किया उन्होंने. वो वही रहा, नो डेफरमेंट. दे शुड हैव डेफर्ड व्हेन दे हैव प्रॉमिस्ड इन द फोरम ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट वी विल एक्सटेंड इट फॉर 1 ईयर, बट दे हैव नॉट डन इट.
मीनिंग देयर बाई वही लॉ है 15 डेज 45 डेज और आपका वो डिसअलाउंस होगा ही होगा, ये अब कुछ नहीं होने वाला। कमिंग बैक सर, एक 40B किया है ये व्हाट यू कॉल पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में इन जो सैलरी मिलती है वो यू न्यू इट दैट इट इज सब्जेक्ट टू ए लिमिट गिवन अंडर 40B and the limit was on first 3 lakh 90% or 1,50,000 whichever is more, and on the balance 60%. This is the limit which is prescribed for deduction on account of salary. Interest is 12%, everybody knows. Now this 3 lakh has been raised to 6 lakh. On the first 6 lakh 90% or 3 lakh whichever is more, on the balance 60%. थोड़ी सी लिमिट बढ़ा दी, नो डाउट, लेकिन एक मुसीबत डाल दी। मैं बार बार कहता था, इन द आईज ऑफ इनकम टैक्स पार्टनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम फर्म। दे से यू आर नॉट द ओनर, ओके यू आर नॉट द एम्प्लॉय, बट यू आर ऑल्सो नॉट द ओनर, फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टनर। ये इनकम टैक्स कहता है, पार्टनरशिप एक्ट तो नहीं कहता। इनकम टैक्स कहता है यू आर डिफरेंट। व्हाट हैव दे डन? 45(3) आया था, you bring any capital asset into kind, पार्टनर को टैक्स लगता था। 45(4) आया, when you distribute at the time of dissolution or reconstitution, it is a transfer। अब कह दिया सैलरी भी लोगे और इंटरेस्ट भी लोगे तो आपको उसके ऊपर TDS भी काटना पड़ेगा, और 194T निकाल दिया, क्योंकि 192 में तो ले जा नहीं सकते थे, वहाँ तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप चाहिए, यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए whatever salary you are going to get and whatever interest you have to pay, please note you will have to deduct TDS at the rate of 10% and deposit that, or वो TDS has to be deducted at the time of payment or credit whichever is earlier। रास्ते में मेरे से नीरव जी भी बात कर रहे थे, संजीव जी भी बात कर रहे थे, अब ये करेंगे कैसे, सैलरी निकालेंगे कैसे, किस तरीके से हम TDS जमा कराएंगे, हाउ डू वी नो हाउ मच सैलरी गिवन। और इंटरेस्ट के बारे में तो यू नो दैट यू कैन ऑलवेज प्लान आउट दैट वी विल गिव इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 12%, और उसके ऊपर TDS सब काट लेंगे। बट व्हाट अबाउट सैलरी? कई तो सैलरी पूरे साल के एंड में डालते हैं, वो तो एंड में डालते हैं और फिर वर्कआउट करते हैं 40B के हिसाब से, एंड में डालते हैं, लेकिन वो कहते हैं सैलरी तो हर महीने मिलनी चाहिए, ये एंड में क्यों डालोगे? और दे कीप ऑन विड्रॉइंग फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट। अगर अब ये आपको बताना पड़ेगा, द कैपिटल अकाउंट विड्रॉवल इज ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉवल इज अगेंस्ट सैलरी, एंड इफ इट इज अगेंस्ट सैलरी यू विल हैव टू डिडक्ट TDS एट द टाइम ऑफ पेमेंट। बी केयरफुल अबाउट दैट। 194T सेक्शन में अब TDS आपको एट द रेट ऑफ 10% काटना ही पड़ेगा, जो मर्जी कर लीजिए, फॉर सैलरी एज वेल एज इंटरेस्ट। अब कई सैलरी लेना बंद कर देंगे और कई लेंगे, क्योंकि सैलरी लेके तो भी 30% देना है, और अगर फर्म है तो भी 30% देना है। What is the need of taking salary? If they are higher bracket people, if they are paying 30% plus surcharge, etc., then why do you take salary from firm? Take the share of profit from the firm. Share of profit तो पूरा माफ है, लेकिन there are people who wants to take salary because of a different reason, profit percentage अलग होगा और salary अलग आ जाएगी। That may be a different story, वो तो case to case vary करता है। लेकिन अब देख लीजिए, all firms including LLP will be required to deduct TDS at the time of payment or credit, whichever is earlier, on account of salary or on account of interest at the time at the rate of 10%. Clear है sir? They will have to deduct TDS also, salary people. आगे चलते हैं। आप और कम से कम गुजराती तो बहुत घूमने जाते हैं अब्रॉड, और पर्टिकुलरली क्रूज में बहुत जाते हैं ना, क्रूज करने के, क्रूज शिपिंग में, शिप में, क्रूज में जाते हैं। वो कहते हैं बाहर क्यों जाते हो, क्रूज शिप हम यहीं ला देते हैं आपको। नाउ दे सेड इफ ए नॉन रेजिडेंट has earned income from cruise shipping, वो शिप यहाँ लाकर क्रूज करा रहा है इंडिया में, their income will be taxed at the presumptive rate of 20, उसकी इनकम कैलकुलेट होगी एट द presumptive rate of 20%, नो डिडक्शन नो एक्सपेंस, मतलब 20% पे टैक्स लग जाएगा उस क्रूज शिप पे। टोटल जो उनका ग्रॉस रिसीट है 20% ऑफ दैट दे विल हैव टू पे टैक्स इन इंडिया, एंड दैट सेक्शन इज 44BBC,
a new section inserted for cruise shipping. That is to non-resident, not to resident. Non-resident will be liable to pay tax only on presumptive income of 20% on that cruise shipping. This is another point there. अब सबसे important point सुनिए. Section 47, clause 3I. Section 47, clause 3I में लिखा है transfer of any capital asset by way of a gift or will or transfer to irrevocable trust is not a transfer. 47 कहता है ये ट्रांसफर नहीं होता, विल से आए या इरिवोकेबल ट्रस्ट को दो या गिफ्ट दो, ये ट्रांसफर नहीं है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता. अब दो जजमेंट आ गई, एक जायज ट्रस्ट की, ट्रस्ट ने किसी को गिफ्ट दिया, और दूसरी जजमेंट आई कंपनी ने दूसरी कंपनी को गिफ्ट दिया. कहता ये भी तो कवर्ड है, तो ये तो ट्रांसफर माना नहीं जाएगा. कंपनी ने कंपनी को गिफ्ट दिया, इट इज नॉट ए ट्रांसफर. डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी की जजमेंट है, इट इज नॉट ए ट्रांसफर. कोई टैक्स नहीं लगेगा जिस कंपनी को आपने गिफ्ट दिया. लीजिए, लॉ बदल दिया. अब कह दिया ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ बाय वे ऑफ ए गिफ्ट और विल और टू ए इरिवोकेबल ट्रस्ट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर. और अगर कंपनी देती है तो ये ट्रांसफर माना जाएगा. ये भी आपको क्लियर कर दूं, ये ट्रांसफर माना जाएगा. ये नया लॉ वाला 4713. मैंने 1 लाख रोक रखा था. हमारे यहाँ सीए बैठे हैं, सब ब्रह्म कुमारी से आए हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं. चैरिटेबल ट्रस्ट, you remember 2-3 years back, they came to me also, 3 years back, 1023C and 1112 में कोई फर्क नहीं रहा. Absolutely no difference, only one difference is in 1112 you could file 9A, in 1023C you cannot file 9A. और 1023C में 22 प्रोवाइजो हैं और बहुत एक्सप्लेनेशन है. मैंने कहा जब आपने अलाइनमेंट कर दिया तो why you have 2 sections, 1023C as well as 11, 12, 13? Why not only one section? हटा दो ना. पिछली बार प्रॉमिस किया, नहीं किया, इस बार कर दिया है. क्या करा है देखना, मर्ज नहीं किए. वो कहते हैं हमने मर्ज कर दिया ना, कुछ मर्ज नहीं किया. देखिए हमारे पास 1023C 3IAB है, 3IAC है, 3IAD है, 3IAE है, ये 4 हैं. उसके नीचे IV है, V है, VI है, VIA है. सुनते रहिए. 3IAB है income of a university or educational institution not for making profit but for imparting education, solely education, shall be fully exempt if it is wholly or substantially financed by the government. और 3IAC है मेडिकल इंस्टीट्यूशन wholly or substantially financed by the government. और 3IAD है 5 करोड़ से ऊपर नहीं है. और 3IAE है कि 5 करोड़ से ऊपर मेडिकल नहीं है. इसको नहीं छेड़ा, बिल्कुल नहीं छेड़ा. जो IV, V और VI और VI है, इसके लिए अप्रूवल चाहिए थी, और अप्रूवल लेनी पड़ती है लाइक रजिस्ट्रेशन. सबने ली अप्रूवल. अब क्या कह दिया? नो अप्रूवल विल बी ग्रांटेड इफ एन एप्लीकेशन इज मेड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024. जब वहां अप्रूवल मिलेगी नहीं तो ऑटोमेटिकली आप 11, 12, 13 में जाएंगे. आप नोटिस कर रहे हैं मैंने क्या? अप्रूवल बंद कर. जो पहले वाले अप्रूवल हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन 5 साल के बाद तो रिन्यू कराना ही पड़ेगा. उस वक्त आप अपने आप 11, 12, 13 में चले जाएंगे. सो वेरी वेरी डिलीजेंटली, बड़ी इंटेलिजेंस में लगाकर छेड़ा नहीं है. सिर्फ एक और प्रोवाइजो डाल दिया, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ प्रोवाइजो 2 विल नॉट बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024. मतलब आपको जो एप्लीकेशन अप्रूवल की आएगी 1024 को, उसकी अप्रूवल नहीं देनी है. जब देनी नहीं है तो कहाँ जाएगा वो? 11, 12, 13 में. और एक और एडवांटेज था, न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी की जजमेंट आई थी दैट इट इज सुप्रीम कोर्ट दैट इट शुड बी सोनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस. ये जो उनको खोला गया था, तुम जो कमा रहे हो, अगर ऑडिटोरियम किराए पे दे रहे हो तो ये कोई बच्चों को थोड़ी दे रहे हो. बच्चों के लिए एजुकेशन है, बट इफ यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम आउटसाइड इट इज फुल्ली टैक्सेबल. ये जजमेंट है न्यू नोबल की, दैट यू कैन डू वॉट एवर वेलफेयर ओनली फॉर योर चिल्ड्रन एंड नॉट फॉर एनीबडी एल्स. एजुकेशन इज सोनली. तो वो तो कर रहे थे. अब क्या है? अब जब यहाँ से हट जाएंगे, 11, 12, 13 में चले जाएंगे, तो वहाँ तो अलाउड है. यू कैन कैरी ऑन ए बिजनेस विच इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट. 11, 4A में आ जाएंगे. तो वो भी खुश हैं अब कि 1023C गॉन.
but gone after 1st of October 2024, if you are getting fresh approval or if you are already approved, whenever you ask for new renewal, you will not get renewal there, you will get renewal under 11, 12, 13. तो अब आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा वो 22 प्रोविजो और 23 प्रोविजो, आराम से उसको भूल जाइए. अब 11, 12, 13 में नए लॉ में आएगा, अब नए लॉ में आएगा. So is this point, this is a well taken thing and everybody has appreciated this, that why should we have parallel sections 123C, 11, 12, 13. 11, 12, 13 is more comprehensive than 10, 23C. तो सारे के सारे अब 11, 12, 13 में ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाएंगे. क्लियर है जी? ये चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में बात कर रहा हूं. नेक्स्ट पॉइंट, चैरिटेबल ट्रस्ट को एक बड़ी दिक्कत होती थी. जब एप्लीकेशन देते थे डिले हो जाती थी फॉर अप्रूवल, एप्लीकेशन डिले होती थी. डिले हो गई तो यू आर नॉट गेटिंग द रजिस्ट्रेशन एट ऑल. अब उन्होंने एक डाल दिया है, प्रोवाइडेड दैट इफ यू कैन आस्क फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, कंडोनेशन ऑफ डिले अलाउ कर दिया है, एंड इफ इट इज रीजनेबल कॉस्ट यू विल बी अलाउड कंडोनेशन ऑफ डिले एंड इट विल बी ट्रीटेड एज यू हैव बीन गिवन रजिस्ट्रेशन. और उसके लिए 139(9)(a) में डाल दिया कि लुक हियर, वो जो कंडोनेशन हुई तो वो मानी जाएगी, वो रिटर्न अंडर 139. तो पॉइंट ये है, अब परमानेंट सोल्यूशन आ गया. पहले तो आपने 2 बार एमनेस्टी दी कि आप कंडोनेशन ना करो और दोबारा अप्लाई कर दो. अब तो परमानेंट आ गया कि whenever there is a delay of filing an application, you can take the benefit of that proviso given under 12A, stating that there was a reasonable cause for not applying on before time, so please give us condonation and will be liberally given, ताकि हम उसको benefit ले सकें. तो एक ये आया. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट. 2 स्कूल मर्ज करना चाहते हैं, 2 इंस्टीट्यूशन मर्ज करना चाहते हैं. मर्जर अलाउड था, अंडर 115 TD में लिखा था टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन मर्जर के बारे में बताया नहीं था कैसे कर सकते हैं. जैसे अमलगमेशन है कंपनी में, तो अमलगमेशन में कंडीशनें है ना कि ये अमलगमेशन ये ऐसे होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करो, ऑल द एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड, ऑल द लायबिलिटी शुड बी ट्रांसफर्ड, 75% बिकम शेयर होल्डर शुड बिकम द शेयर होल्डर. ये सब कुछ था ना वहां पर. मर्जर के लिए अभी तक दिया ही नहीं है. मुझे कल कंप्लेंट कर रहे कि आपने क्यों नहीं रेज किया ये सवाल. मैंने सर आपको कई बार बोला, सुनता ही कोई नहीं था हमारी. तो अब मर्जर के लिए 12AC सेक्शन डाल दिया. उसमें क्या लिखा है, मर्जर तो होगा तो 2 रजिस्टर्ड या अप्रूव्ड यूनिट का होगा, अनरजिस्टर्ड का नहीं. ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, दे कैन मर्ज. सेकेंड, व्हेन दे मर्ज उनके ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए. थर्ड, जिसमें मर्ज हो रहे हैं वो पूरी रजिस्टर्ड यूनिट है और अप्रूव्ड यूनिट है. एंड फोर्थ, हम कंडीशन प्रिस्क्राइब करेंगे, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तभी मर्जर अलाउ करेंगे. क्योंकि प्रॉब्लम ना वहाँ कॉर्पस है, नॉन कॉर्पस है, वहाँ ये वाली चीज़ें हैं. मर्ज करते हुए उनको सारी कंडीशनें बतानी पड़ेगी. वहाँ तो ऑल एसेट लायबिलिटीज था, क्या होगा, कॉर्पस शुड बी ट्रीटेड एज कॉर्पस, दिस स्पेसिफिक कॉर्पस शुड बी ट्रीटेड. तो ये पोजीशन अब क्लियर हुई है. ऑल्दो मर्जर वाज अलाउड but no guidelines were given, no rules were given, but this is a very good proposal which has come for charitable trust or religious trust. They can merge, but they have to satisfy whatever the conditions are going to be there under 12AC. नया सेक्शन डाला है 12AC, उसमें आप मर्ज कर सकते हैं. 2 रजिस्टर्ड है, आपके बहुत रजिस्टर्ड हैं, कितना चाहे तो मर्ज भी कर सकते हैं अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन. क्लियर सर? और इसमें 115 TD नहीं लगेगा. ये पॉइंट आपको बता दिया मैंने. नेक्स्ट पॉइंट, मुझे तो समझ नहीं आया क्या किया. एक गंगोत्री निकलती है कलकत्ता से, समझ में आ गया, और फैलती है पूरे इंडिया में. गंगोत्री कलकत्ता से निकलती है और कहीं से नहीं निकलती. आप कहेंगे नहीं, गंगोत्री तो गंगोत्री से निकलती है. आप गलत सोच रहे. टैक्स की गंगोत्री कलकत्ता से ही निकलती थी. हमें जब जी कलकत्ता जाता था कोई नई चीज सीख के आता था, तो वहां पर तो 10 रुपए का शेयर 990 रुपए प्रीमियम 1000 रुपए बिकता था. नई कंपनी का शेयर, सुना हुआ है ना सर आपने, नई कंपनी 10 का 990 प्रीमियम 1000 रुपए का शेयर. तो लॉ बदला था, आपको याद होगा, 56 एक्सेप्ट 2 क्लॉज 7B डाला था कि अब आप इश्यू ऑफ शेयर करेंगे तो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा करेंगे तो जितना भी डिफरेंस होगा दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी.
मतलब आपकी शेयर है, उसकी मार्केट वैल्यू अंडर 11U2 50 रुपये है, तो 50 तक तो कर सकते हैं, और 50 से ऊपर करेंगे, 90 रुपये में करेंगे तो 40 रुपये पे टैक्स कंपनी को देना पड़ेगा। ये लॉ आया हुआ है 5627B, ये था। और ये पहले था सिर्फ रेजिडेंट के लिए, पिछले साल नॉन रेजिडेंट के लिए भी कर दिया कि दे ऑल्सो कांट डू इट, इतने भी देना पड़ेगा। अब मुझे समझ नहीं आया, ये सेक्शन बिल्कुल ही खत्म कर दिया, अबॉलिश्ड। क्यों अबॉलिश किया गया? स्टार्टअप जो एंजल है, एंजल टैक्स, वो स्टार्टअप कह रहे हैं कि हमें तो बड़े मोटा अमाउंट मिलता है शिशु करने में, और आप हमें टैक्स करते हैं, और वी आर नॉट एबल टू मीट द कंडीशन ऑफ स्टार्टअप, क्योंकि रजिस्टर कराना पड़ता है, ये कराना पड़ता है, और फॉरेन वालों ने प्रेशर डाला तो ये सेक्शन ही खत्म हो गया। तो अब तो फिर वही होगा कलकत्ता, आप जितने भी मर्जी इशू करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, शेयर प्रीमियम जो मर्जी ले लो, मार्केट वैल्यू से ऊपर ले लो। लेकिन एक चीज याद रखना, भूल मत जाना, सेक्शन 68 में लिखा है, वेयर ए कंपनी रिसीव शेयर एप्लीकेशन मनी और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, इन दैट केस नॉट ओनली द सोर्स, यू हैव टू गिव द सोर्स ऑफ दैट अमाउंट। पहले सिर्फ सोर्स बताते थे ना, बाद में आ गया था पेनी स्टॉक में से, जिस सोर्स है उसका सोर्स बताओ कहाँ से पैसा आया, मतलब घुमा के तो नहीं लाए। वो 68 ध्यान रख लीजिए। अदरवाइज अब तो यू कैन इशू शेयर एट एनी अमाउंट, नो नॉट नेसेसरली फेयर वैल्यू, एनी अमाउंट, बट केयरफुल, 56(2)(10) लग जाएगा। फेयर वैल्यू से कम करेंगे तो, फेयर वैल्यू से ज़्यादा करेंगे तो 56(2)(10) भी नहीं लगेगा। सो तो ये वजह समझ में नहीं आया, लेकिन सडनली आई वॉज टेकन बाई सरप्राइज, सेक्शन 52(7)(b) पूरा का पूरा हटा दिया गया है। एक छोटी सी वो और अमेंडमेंट है, दैट फैमिली पेंशन में जो डिडक्शन मिलती थी, व्हाट यू कॉल 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस, उसको बढ़ा दिया 1/3 और 25,000 विच एवर इज लेस। खास बात नहीं है, तो जो बढ़ाया तो बढ़ा दो। मैं ब्लॉक असेसमेंट वो बाद में लेता हूँ, मैं पहले आपको थोड़ी चीज़ें बता दूँ जो प्रैक्टिकल है। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है, सैलरी वाले बहुत तंग थे। किस चीज़ से? सैलरी वालों ने कोई मकान बेचा, उसका TDS कटा होगा, सेलर है, TDS किसने काटा? 80 बायर ने काटा ना, 1%। सैलरी वाले ने मोटर कार खरीदी 10 लाख से ऊपर, उसका TCS कलेक्ट हुआ ना 1%। ये दोनों अमाउंट का उसको वो एम्प्लॉयर कहता था मैं इसको अकाउंट फॉर नहीं करूंगा, मैं तो अपनी सैलरी पे करूंगा। हाँ, कोई ऐसी इनकम है जो मुझे बता दो और उसमें TDS कटा हुआ है, वो मैं ले लूंगा इनकम को, बट आई विल नॉट टेक दिस एज व्हाट यू कॉल TCS, इसका क्रेडिट में दे दूं। सर, लॉ बदल दिया है। अब सैलरी वाले अगर उनका TCS कटा है, TCS किस में कटा है? उसने 10 लाख के ऊपर की गाड़ी ली है, TCS कलेक्ट किया, उसने TDS कटा, कोई गाड़ी वो बेचा, मकान बेचा है, उसके ऊपर 1% कटा, उसने अपने बच्चे को पढ़ाने भेजा, उसमें भी TCS है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम 5% जो भी है, वो जब TCS का अगर वो इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को दे देगा, द एम्प्लॉयर विल गिव द बेनिफिट ऑफ द TDS एज वेल एज TCS एंड डिडक्ट द टैक्स ओनली ऑन द बैलेंस अमाउंट। ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बेचारों को कहता है सैलरी में पूरा काट लेते हो, अब इसके लिए हमें बार बार रिटर्न भर के उसको वापस लेना पड़ता है। सो दिस इज़ नॉट डन सर, तो ये तो उसको ठीक करो। तो उन्होंने अब TCS का बेनिफिट सैलरी में देना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, बड़ा ख़तरनाक सेक्शन आया है 206C(1)(f). 1F यही था ना कि मोटर कार 10 लाख से ऊपर खरीदोगे तो 1% TCS करेगा, यही है ना लॉ? रोलेक्स गाड़ी खरीदोगे तो वो भी TCS 1% हो जाएगा। क्यों? अब लिख दिया एनी अदर आइटम पे भी TCS कटेगा इफ इट इज मोर देन 10, एनी अदर गुड्स विच विल बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अब गाड़ी अगर रोलेक्स गाड़ी खरीदी तो ध्यान रखना 1% TCS कटेगा। आपको सोर्स बताना पड़ेगा। आप कहेंगे चेक से खरीदा है, लेकिन चेक के भी सोर्स कई होते हैं, समझ में आ गया। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपके इनकम के हिसाब से ये 18 लाख की गाड़ी खरीदी या 20 लाख की खरीदी या 30 लाख की खरीदी, जो 1% TCS से अब मॉनिटर हो गया ना। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मॉनिटर्ड दैट प्लीज इफ यू बाई एनी गुड्स अबाउट 10 लाख देयर विल बी ए TCS टू बी कलेक्टेड बाई द सेलर एट द रेट ऑफ 1%। ये नया लॉ आ गया है। अब आपकी लग्जरी आइटम पे भी नज़र है। LV के जगह मत जाना। LV में पहले ही सेल कम हो गई, जो 2 लाख से कम वाले थे अब वो बिकते हैं, 2 लाख से ऊपर वाले का तो सब कुछ मांगते हैं।
कैश तो ले ही नहीं सकते, कैश ले एलबी वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं सर। एक गया, मैं भी गया था, 3 लाख का एक पर्स था, उन्होंने कहा जी कैश लेना, कहता ऐसे करो 1,99,000 कैश दे दो और बाकी चेक दे दो या क्रेडिट कार्ड दे दो। और मैं कहा बिल तो एक ही है भाई, उससे क्या फर्क पड़ेगा कैश दिया और नहीं दिया। इफ इट इज लेस देन 2 लाख इट्स ओके, कैश तो मर्जी करो, बट इफ इट इज मोर देन 2 लाख यू मे पे कैश 1,99,000, हाउ डज इट मैटर? रिकॉर्ड हैज कम, और इनकम टैक्स के पास पूरी इंफॉर्मेशन है, सारा डेटा शेयर होता है, जहां जहां से भी आप कुछ खरीदते हैं और सबका डेटा उनके पास है। अमेजन से कैश ऑन डिलीवरी लेते हैं या फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी लेते हैं, छोटे अमाउंट छोड़िए, बड़े अमाउंट का रिकॉर्ड उनके पास पूरा है। दे नो एवरीथिंग अबाउट यू, डिपार्टमेंट नोज मच मोर देन व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ, ये सबको पता है। अरे बहुत जाते हैं अब्रॉड, वैट क्रेडिट लेते हैं, वैट खरीदते हैं ना, जरूर लीजिए वैट क्रेडिट अगर वाइट का पैसा है। अगर वैट क्रेडिट लेकर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आती है कि आपने इतना पैसा वहाँ खर्चा और उसका वैट क्रेडिट लिया, तो पूछेंगे ये इसका सोर्स बताइए अबाउट दिस मनी विच यू स्पेंट अब्रॉड। और कई तो एयरपोर्ट पे आकर वैट लेके ना फिर उसी का माल दोबारा ले लेते हैं कि घर नहीं ले जाना, वहीं रख लेंगे। लेकिन प्लीज रिमेंबर, whatever VAT credit you have taken abroad from any country, from 126 country, the information is being shared with India कि ये VAT credit इन्होंने लिया है, और वो VAT credit का फिर आपसे अकाउंट फॉर कर सकते हैं, बताइए क्या खरीदा था। सो बी केयरफुल, जमाना बदल गया है, पे टैक्स एंड एंजॉय लाइफ। मैं तो सीधे सीधे जानता हूँ, गलत काम करने से अब कुछ नहीं होगा, जितना टैक्स दोगे उतना खुश होगे। नंबर 2 का पैसा या खुद को बर्बाद करता है या बच्चों को बर्बाद करता है। नंबर 1 का पैसा ही काम आता है, और नंबर 1 ही चाहिए। ना हमारे यहाँ वेल्थ टैक्स है, ना हमारे यहाँ गिफ्ट टैक्स है, ना ही हमारे यहाँ राउल टैक्स है, मतलब इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, और ना ही हमारे और कोई टैक्स है। तो एक ही तो टैक्स है सर, अरे इनकम टैक्स, और वो भी हम ना दें और फिर 12.5% वाला हो तो जरूर देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, पीपल हैव चेंज नाउ, आउटलुक चेंज हो गया। कहते हैं हम टैक्स देंगे और अपनी लाइफ को अच्छी बताएंगे। सो प्लीज आई एम कमिंग टू दैट, ये चीज़ें भी ध्यान रखना कि उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन आपके उनके पास है रिगार्डिंग व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन एक बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, वो तो उनके पास डिमांड आ रही थी, इतना TDS रिफंड करना पड़ता है, एक्सेस TDS का डिडक्ट हो जाता है, 2 लाख करोड़ TDS का रिफंड दिया, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो अब उनको कुछ अकल आई, कुछ TDS रेट कम कर दिए, अंडर 194DA, अंडर 194G, अंडर 194H, अंडर 194IB, अंडर 194M, अंडर 194AO, ये सब के सब TDS जो 5% होते थे 2 कर दिए। 5 has been reduced, इंश्योरेंस कमीशन 5 reduced to 2, आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 reduced to 2, कमीशन एंड ब्रोकरेज 5 reduced to 2, 194IB जो 50,000 से ऊपर रेंट देते थे, जिनका TDS 194I में नहीं था, 1B में 50 से ऊपर होता था, उसको 5 का 2 कर दिया। 194M जो आप इंडिविजुअल थे और HUF थे, जिनके अकाउंट्स नहीं ऑडिट होते और वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते थे 50 लाख से ऊपर, प्रोफेशनल सर्विस देते थे 50 लाख से ऊपर का पैसा खर्च करते थे, उस पर TDS आया था, वो भी 5 से 2 कर दिया। और ओवरसीज जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जब 1% था वो 1 हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 0.1%। ये बहुत अच्छा किया सर। यू वर डिपॉजिटिंग TDS एंड देन यू वर क्लेमिंग रिफंड ऑफ दैट TDS, क्योंकि इतना आपकी इनकम नहीं है जितना, ये कारण उन्होंने इसको भी खत्म कर दिया। और जो 194Q था और 206H था, वो जो गुड्स के ऊपर 50 लाख से ऊपर हो तो आपको TDS काटना पड़ता था या TCS था, उसके लिए भी 197 कर दिया। 197 मीन्स अगर लोअर रेट का सर्टिफिकेट उसके लिए भी ले सकते हैं, सो दैट यू हैव टू पे, क्योंकि आपका 1% कट गया कि करोड़ों रुपए की वो है और इतना प्रॉफिट नहीं है, तो TDS तो वापस करना ही पड़ेगा ना उनको। सो वो चीज़ों को ठीक करने के लिए उन्होंने वो भी बेटर कर दिया। दिस हैज़ बीन डन, बहुत अच्छा काम किया जो TDS रेट को कम कर दिया है, और दे विल हैव टू डू इट फॉर अदर पर्पज ऑल्सो। अब होता था करेक्टेड स्टेटमेंट, ये जो क्वार्टरली स्टेटमेंट जाती है, आप करेक्शन तो कभी भी कर सकते थे, देयर वाज नो टाइम लिमिट ऑफ करेक्ट। आप 15-15 साल की स्टेटमेंट करेक्ट हो रही, वो कहते ये कैसे हो सकता है, अब टाइम लिमिट लगा दी,
या TCS की क्वार्टरली स्टेटमेंट है या TDS की क्वार्टरली स्टेटमेंट है, यू विल हैव करेक्शन अलाउड ओनली अप टू 6 years. Beyond 6 years, they will not be able to, or you will not be able to file a correction statement. जो TDS की करेक्शन स्टेटमेंट होती है, गलत काट लिया, उसकी उन्होंने 26 years में शो नहीं हो रहा, आप उसको करेक्ट करके डाल रहे हैं, वो 6 साल के बाद नहीं कर सकते. ये भी एक उन्होंने टाइम पीरियड लगा दिया ताकि आप गलत ना करें तो अच्छा है. जो मैंने आपको कहा था 12.5% TDS हो गया है, हुआ ना, वो सॉरी कैपिटल गेन टैक्स, जो नॉन रेजिडेंट थे उसको टैक्स लगता था तो TDS पूरा कटता था. क्योंकि अब 12.5% है तो उन्होंने अब कह दिया है 100 सेक्शन 115AB, 115AC, 115ACA, 115AD, 115E सब में TDS पहले 20 कटता था, अब क्या कटेगा 12.5% कटेगा. क्योंकि नॉन रेजिडेंट के केस में तो आपको TDS काटना पड़ता है ना फॉर एनी इनकम. रेजिडेंट के केस में तो TDS है ही नहीं फॉर कैपिटल गेन, लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में था. दे हैव करेक्टेड दैट, you will have to deduct at 12.5% instead of 20% which was there earlier. जब कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी बेचता था नॉन रेजिडेंट तो TDS किस रेट पे काटते थे 20%, 1% थोड़ी था. Now TDS will be 12.5%. Be careful, now it is 12.5, earlier it was 20%, क्योंकि इंडेक्सेशन के बाद होता था. लेकिन हमें तो प्रॉब्लम आती थी कि वो 20% भी फुल प्राइस पे काटते थे, एंटायर 100 कंसिडरेशन प्राइस, क्योंकि हमें पता नहीं था कैपिटल गेन कितना है. अब पॉसिबल ही है कि अगर आपको कॉस्ट मालूम है, सेल प्राइस है, इंडेक्सेशन नहीं है, तो आप इनकम चार्जेबल टू टैक्स में भी तो 12.5% काट सकते हैं. यू कैन डू इट ऑन दैट वे ऑल्सो. सो दैट ऑल्सो विल गिव यू अ रिलीफ टू सर्टेन एक्सटेंट. नेक्स्ट पॉइंट सर, देखिए 1995 में ब्लॉक असेसमेंट का लॉ आया था. वो सेक्शन थे 150, चैप्टर 14B था, 158B से ऑनवर्ड. जो पुराने लोग बैठे हैं वो ब्लॉक असेसमेंट के बारे में जानते हैं कि ब्लॉक असेसमेंट होती थी. लेकिन उसके बाद हम ले आए 153A, 153B, सर्च की बात कर रहा हूँ, 153C. फिर वो भी अच्छा नहीं लगा तो हम आ गए उसको 147 में ले आए. ब्लॉक असेसमेंट आया ना अभी पीछे, तो 21 में दो आ गया, लाइए दोबारा वापस चले गए. ब्लॉक असेसमेंट होगा. लेकिन देखिए इसमें एडवांटेज क्या हुआ है, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, क्यों एडवांटेज. अभी तक कभी सर्च का केस होता था तो टैक्स कितना लगता था 78% प्लस पेनल्टी 30% इफ यू हैव डिक्लेयर्ड दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्च. 78 तो टैक्स, 30 पेनल्टी. एंड इफ यू हैव नॉट डिक्लेयर्ड द टाइम ऑफ सर्च 138%, 60% पेनल्टी, 78% टैक्स. अब भगवान ना करे सर्च हो तो आपको टैक्स लगेगा मैक्सिमम 60%. 60 ब्लॉक असेसमेंट में फॉर 6 years टेकन टुगेदर 60%. नो इंटरेस्ट अंडर 234A, नो इंटरेस्ट अंडर 234B, नो इंटरेस्ट अंडर 234C, नो पेनल्टी अंडर 270A. कुछ नहीं, सिर्फ 60% दीजिए. लेकिन रुकिए, अगर आपका सर्च हुआ है और आपको रिटर्न भरने के लिए बोला जाएगा, अगर रिटर्न में सब बता दोगे तो 60 होगा. अगर रिटर्न में नहीं बताया और बाद में पता लगा तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी 50% और 60%, 90% हो जाएगा. 60 + 30 पेनल्टी तब लगेगी जब आपने उसको सरेंडर नहीं किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिटर्न. और रिटर्न के टाइम पे आप सब कुछ डिक्लेयर कर दें, उसके ऊपर पेनल्टी नहीं पड़ेगी. और प्रोवाइडेड यू हैव टू पे टैक्स ऑल्सो, उसके ऊपर और पेनल्टी टैक्स दे दो, हम आपको छोड़ देंगे. सेकंड पॉइंट, अगर आपने रिटर्न भरी, आपने डिफरेंस 10 करोड़ बढ़ा दी, बाद में एओ ने असेसमेंट करी 15 करोड़ आया, तो जो डिफरेंस ऑफ 5 करोड़ है उसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी. आइदर गिव द प्रूफ डिक्लेयर, और नहीं देंगे तो जितना भी डिस्क्लोजर कम हुआ बाद में असेसमेंट बढ़ेगी तो उसको आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी. लेकिन एक चीज नोट कर लेना, पुराने लॉ में अनडिस्क्लोज्ड इनकम था, इस लॉ में टोटल इनकम निकालनी है 6 साल की, और जितना टैक्स आपने दे दिया वो लेस करके बाकी पे टैक्स लेना है. प्लीज नोट, टोटल इनकम और 6 साल टुगेदर. इसमें क्या नए लॉ में आया था, हर साल का नोटिस आता था. केस तो 10 साल का, हर आया जो टाइम बार्ड हो रहा है उसका नोटिस दे दो, बाकी पेंडिंग रख देते थे.
अब तो 6 साल का 6 साल जो भी है कंबाइंड असेसमेंट होगी, जो असेसमेंट चल रही है वो अबेट हो जाएगी, 6 साल की इनकम निकालेंगे, टोटल करेंगे, उसमें से जितना टैक्स आपने दे रखा है वो लेस कर देंगे, उसके ऊपर 60% टैक्स आपको देना है, प्रोवाइडेड यू डिक्लेयर दैट अमाउंट. If you don't declare at the time of filing a return, you will have to pay penalty also 50%, for which you can always file an appeal to the ITAT. वो अपील फाइल कर सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा प्रोविजन आया सर, लेकिन 3 बार 4 बार बदल गया सर्च असेसमेंट का. लेकिन अब सर्च के केस में पुराना लॉ आ गया 60%. पेनल्टी ओनली व्हेन यू डोंट डिक्लेयर दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च. तो पेनल्टी 50% होगी. ये सर्च के केसेस हैं सर. और जो किसी और का मनी बुलियन ज्वेलरी पाया गया आपके यहाँ पर और एनी डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए 158 BD आ गया कि उसके लिए, एंड टाइम पीरियड भी कर दिया 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन द सर्च इज एग्जीक्यूटेड. 12 महीने के अंदर डिसाइड कर देंगे और 6 साल का पूरा टैक्स आपसे ले लेंगे. सो फॉर सर्टन पीपल ये अच्छा होगा, और अदर्स के लिए तो जो है ठीक है. बट ये सर्च, दूसरा जो रीअसेसमेंट था, कुछ तो ये चेंज करना था क्योंकि सर्च हैज बीन सेपरेटेड, और कुछ ये कर दिया कि 148 इज ए वेरी बिग प्रोसीजर. उसमें वो डेटे दे रखी हैं. पहले वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा असेसिंग ऑफिसर, उसके बाद आपको रीज़न बताएगा, फिर आपसे कहेगा रिटर्न भरिए, फिर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसके बाद डिसाइड करेगा और ऑर्डर पास करेगा 148 में. वो कहता कुछ नहीं, 148 बदल दिया, सब सेक्शन 1 में कह दिया कोई उसको कंडक्ट नहीं करनी इंक्वायरी. इफ़ ही हैज़ इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट द इनकम एज एस्केप्ड असेसमेंट, वो आपको नोटिस दे देगा और कहेगा कि बताइए दिस इनकम है, यू गिव योर, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा, और आपको शो कॉज का जवाब भी देना पड़ेगा. और जब दवाल दे देंगे तो वो डिसाइड करेगा वेदर इनकम एज एस्केप्ड. अब पहले डिसाइड बाद में होता था, अब डिसाइड पहले ही कर देना है नोटिस देने से पहले कि भाई ये इनकम एस्केप असेसमेंट है कि नहीं है. नहीं है अगर उसने बता दिया तो इन दैट केस नो नोटिस, नो ऑर्डर विल बी पास्ड अंडर 148A. ऑर्डर पास करने की जरूरत क्या है? जब हो गया तो वो पहले आपको बुलाएगा, आपको नोटिस देगा ये वाली इनकम एस्केप है, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आप उसके पास जाएंगे, दिखाएंगे. इफ ही इज सेटिस्फाइड ही विल नॉट इशू फर्दर नोटिस. इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड आप शो कॉज का जवाब मांगेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा, देन ही विल पास एन ऑर्डर अंडर 148A सबसेक्शन 3. वो पास करके फिर 148 का नोटिस देगा और 148 के बाद 147 करेगा. और पीरियड भी कम कर दिया, पहले 3 साल था और 6 साल था. 3 years for any income and 6 years if the income escaped is more than 50 lakh and it represents some assets, some entry, some. अब वो 6 साल has been brought down to 5 years for reassessment. 5 years, 3 + 2, 3 में तो दे ही सकता था. अब पुराने केस 2 और साल है जो खोल सकता है अंडर 147. पहले 5 था, और अब पावर जो दे दी गई वो ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को दे दी, ऊपर नहीं है. सो माई पॉइंट इज 148A, 147 ये भी जो हैं सब सिंप्लीफाई और कर दिए गए हैं. पीरियड भी कम कर दिया गया और सिंप्लीफाई भी हो गया. सो ये अच्छे के लिए किया है, बुरे के लिए नहीं किया है. और वो ब्लॉक असेसमेंट भी काफ़ी बेटर कर दिया. यू विल हैव टू पे लेस टैक्स एज कंपेयर टू विच यू आर पेइंग अर्लियर एट द रेट ऑफ 108 और 138%. वो भी ख़त्म हो रहा है सर. ये भी आपके एक फ़ायदे की चीज़ मैंने जो बताई, जो आपको करना है. आप घबराना नहीं है. और एक और स्कीम दे दी दोबारा, विवाद से विश्वास. 2020 में आपके ऊपर विश्वास किया था, अब फिर हम आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं. जो लिटिगेशन है ख़त्म करा लो सिर्फ टैक्स देकर. यही तो है विवाद से विश्वास. पहले भी तो यही किया आपने. विवाद से विश्वास में क्या था? यू आर पेइंग टैक्स ओनली, नो इंटरेस्ट, नो पेनल्टी, पे टैक्स एंड एंजॉय द लाइफ. जो भी केस पेंडिंग है क्लियर करा लो. अब भी बहुत केस पेंडिंग हो गए, जाइए और क्लियर करा लीजिए. और क्लियर करके आप विवाद से विश्वास का अपना टैक्स दे देंगे और कोई इसके केस इसके अगेंस्ट नहीं करेंगे. दे विल एग्री. जितने भी पेंडिंग केस हैं यू कैन विड्रॉ, पे टैक्स एंड एंजॉय लाइफ. तो कितना रिलीफ है सर. नो पेनल्टी, नो इंटरेस्ट, ओनली टैक्स, प्रोवाइडेड यू एग्री टू देयर डिमांड. ये तो पक्की बात है. और ऐसा ज़्यादा खर्च होता है विवाद से विश्वास की. अब स्कीम पूरी आ जाएगी
नोटिफाई होगी, स्कीम तो आ गई, नोटिफाई होगी, एंड दे आर एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन विच वॉज देयर ड्यूरिंग 2020। सेम तरीका है। वो आप कहेंगे अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिले, कोई बात नहीं, हो तो गया ना विश्वास उसका, और आपका काम तो खत्म हो गया, पुराने केसेस खत्म है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ विवाद से विश्वास वंस अगेन, एंड इट विल रिड्यूस लॉट ऑफ लिटिगेशन। वो चाहते हैं कि लिटिगेशन खत्म हो, चाहते क्या है, उनको रिकवरी नहीं होती, कई सालों के केस पेंडिंग पड़े हैं, वो कहते हैं जो मिलेगा वही अच्छा है, A bird in hand is better than two in the bush। वो वाला उनका विवाद से विश्वास का कारण है। सो वो भी आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। सबसे बड़ा जो मुझे एडवांटेज मिला है आपको, मुझे वो 276B का था। सर TDS कटता था, जमा लेट कराया, प्रोसिक्यूशन हो जाता, कंपाउंडिंग कराओ। जब TDS काटते थे, इवन इफ इट इज 1 day डिले, 2 days डिले, 10 days डिले, दे यूज टू फाइल कि भाई एक प्रोसिक्यूशन अंडर 276B मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 7 साल की जेल। उसको बचाने के लिए भागते थे प्रोसिक्यूशन के लिए और कंपाउंडिंग कराते थे। सर गलती तो किसी से भी हो सकती है, 2 दिन डिले, 4 दिन डिले, 5 दिन डिले, ये क्या हो रहा था? अब बड़ा क्लियर कर दिया है। क्वार्टर के जो रिटर्न जाती है उसकी ड्यू डेट सबको मालूम है, 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। इफ आई हैव, आपने कम TDS जमा कराया है, काट के जमा नहीं कराया, यू डिपॉजिट बाई बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द क्वार्टरली स्टेटमेंट, हम आपको प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे। मतलब अगर अप्रैल का था तो रिटर्न जानी है जुलाई को, 31 जुलाई जानी है, तो अप्रैल वाला का जमा करा दीजिए जुलाई तक, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। मई का भी 23 जुलाई तक कर ले, हम नहीं कहेंगे। पर ये आज नहीं कर रहा, अगले बारी में, अभी तो डेट अगले से आनी है, तो पिछले अप्रैल वाला का नहीं आएगा, अक्टूबर से ये शुरू होगा। कि क्या होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, आपने TDS काट के जमा नहीं कराया, तो 31 जनवरी तक करा दीजिए, नो प्रोसिक्यूशन। इंटरेस्ट पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट डेट, नो प्रोसिक्यूशन। जनवरी फरवरी मार्च है, यू आर गिवन 2 months, 31 मई तक करा दीजिए, तो ठीक है, नो प्रोसिक्यूशन, अदरवाइज प्रोसिक्यूशन होगा। सर ये बहुत बड़ा रिलीफ है, छोटी मोटी गलती रह जाती है, एंड वी वर पुट टू डिफिकल्टी ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब कंपाउंडिंग होता था और कितनी मुश्किल पड़ती थी। अब आपको पता है कि गलती हो गई और आपने इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो TDS जमा करा दो ना, और TCS में भी यही है, जमा कराओ और आपको कोई प्रोसिक्यूशन का नोटिस नहीं आए। क्लियर है सर? ये भी। अब मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास कोई भी क्वेश्चन इसके बारे में, चीज़ें रह गई 2-4 मैंने जान के छोड़ी हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क दैट क्वेश्चन, कि क्लैरिटी जहाँ नहीं हो रही मैं आपको बताता हूँ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम नाउ इन व्यू, पूछिए, कुछ भी पूछना हो तो। अगर किसी के पास माइक हो तो ले जाएं वहाँ पर, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई क्वेरीज हैं और हो सकता है मैंने एक आध आइटम छोड़ दी हो, इसीलिए कह रहा हूँ। वो उधर दिखा रहे हैं। वैसे तो मैं भी नीचे आ जाता हूँ, लेकिन चलिए, नहीं माइक से बाकियों को सुनाई देगा, बाकियों को सुनाई दे। Hello. Yes, sir. Sir, in case of search, when this block assessment and total tax is on total income. Block assessment period is 6 years. Yeah. Plus the date of search. And current year date of search. So I'm say in that case, what happens? Tax is on at the rate of 60% on the total income. Total income. Yeah, and whatever tax One is minute. paid, but Total income including undisclosed income. yeah. So whenever your paid tax at the 30%, and in this case you will be required to pay tax on 60% of the total income. Yeah. So there would be some additional liability. I wanted to Sir, confirm एक that. मिनट प्लीज, आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा? पुराने का अगर केस का 6 साल पहले का केस है, उसके ऊपर आपकी डिमांड है, अगर उसमें अगर कोई सर्च में पकड़ा गया, तो उस केस के लिए आपको उस साल का इंटरेस्ट देना है? नहीं sir, it includes 60% on total income. So whatever is not disclosed, whatever is not found out, you are required to pay additional tax on that amount. I want confirmation. सर एक बिल्कुल यही होगा। आपकी सुनिए, 6 साल में आपने 50 लाख रुपया रिटर्न भरी, कितना हुआ? 3 करोड़। आपकी टोटल इनकम डिटरमिन करी 6 साल की 5 करोड़, यही होगा ना? 5 करोड़ का जो टैक्स बनेगा 60%, 3 करोड़,
और जो 50 लाख पे आपने 6 साल का दिया है वो लेस कर दीजिए, बस खत्म। But that would be at lower time. I wanted to. सर confirm लोअर that, yes. मैडम सर आपने जो वो उस वक्त टैक्स नहीं दिया उसका इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा है 1% पर मंथ। नहीं, already paid है whatever is. पेड वाले not तो बात ही नहीं कर रहे हम, अनपेड जो उसकी इनकम बढ़ाई। अरे वो 50 Thank लाख you. की इनकम, सर 50 लाख की इनकम करोड़ रुपया है, तो उस 50 लाख पे टैक्स नहीं देना आपने 5 साल का 6 साल का। ये आप सुनिए ब्लॉक में क्या हो रहा है। 6th year I showed income of 50 lakh. Some documents are found and I find that income should have been 1.5 crore instead of 50 lakh. For that 1 crore you have to pay tax 30% plus also interest plus also penalty. We are not asking for penalty. We are not asking for interest. We are only asking 60% for that 6th year. अगले साल 50 लाख रुपए आपने कम दिखाया, हम फिर 60 मांग रहे हैं, पेनल्टी नहीं मांग रहे, इंटरेस्ट नहीं मांग रहे। सर बहुत अच्छा है सर। Okay, thank you. क्या चाहोगे, मोदी जी को कहोगे सब कुछ छोड़ दें? ये नहीं हो सकता, बहुत कुछ छोड़ना पड़ गया कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से, बाकी नहीं होगा, ये बता दें। Sir, my question is regarding Vivad Se Vishwas scheme. Sir, if tax is levied under section 115BBE, then we have to pay basic tax at 60% or 30% under the scheme. एक मिनट, जो टैक्स रेट है वो देना है। पहले नहीं किया आपने 115 बीबी वाला, जब 20 तक आई थी वही चीज सेम है, कोई नई चीज नहीं है। अब आप चाहते हो वहां पर भी 60 के बदले 30 दे दो, ऐसा तो नहीं होगा। जो टैक्स आपका बनता है, आपसे पेनल्टी नहीं मांग रहे, आपसे इंटरेस्ट नहीं मांग रहे, आपसे ओनली टैक्स मांग रहे। Thank you, sir. चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? या कोई पॉइंट रह गया हो जो मैंने नहीं किया होगा, मैं बता देता हूँ। हाँ सर एक अभी 87A में रिबेट में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि शॉर्ट टर्म पे वो रिबेट तो उसका हाँ, कोई- बैठिए। उसकी गलती मेरी है। जब ये लॉ आया तो मैं भी डिपार्टमेंट में जाता हूँ, पर इस बार नहीं जा रहा क्योंकि 26 में कहीं बाहर हूँ, नहीं तो कल भी जाता। कल लेक्चर है वहाँ पर, सारे कमिश्नर्स वगैरह आते हैं। तो इन्होंने 7 लाख माफ किया था ना, 7 लाख माफ। उसमें मार्जिन रिलीफ नहीं था उस वक्त, बाद में आया मार्जिन रिलीफ। तो मैंने कहा 7 लाख है तो माफ है, और 7 लाख 10,000 है तो आपको पूरे 7 लाख 10,000 पर टैक्स देना। ये कौन सा लॉ हुआ? ये दिस इज रॉन्ग। तो इन्होंने मार्जिन रिलीफ डाल दिया कि जितना एडिशनल इनकम होगी उससे ज़्यादा टैक्स नहीं होगा, ये डाला था। अब जरा ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना। मेरी इनकम 7 लाख है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख एंड अदर इनकम 5 लाख। ओनली 7 है, 7 है। शॉर्ट 2, अदर इनकम 5, ऑन 2 टैक्सेस 15 पुराना लगा रहा हूँ, 30,000, एम आई राइट? और उन 5 लाख 3 लाख माफ, 2 लाख के ऊपर 5% 10,000। ठीक है सर? 30 और 10 40। रिबेट कितनी मिली? 25। यू हैव टू पे टैक्स 15,000। बिल्कुल ठीक है ना सर? यही देना पड़ेगा ना, 25 से ज़्यादा तो नहीं देनी ना, 15,000 देना। मेरी इनकम 3,05,000 है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 7 ही लाख है, वही 2 लाख है, तो मुझे टैक्स कितना देना है? 5,000। ये कौन सा लॉ बन गया भाई? एडिशनल इनकम पे उतना ही देना है जो एडिशनल इनकम है। 7 लाख है तो मुझे 10,000 देना पड़ रहा है, और 7 लाख 5,000 है तो 5,000 देना पड़ रहा है। भाई ये कौन सा लॉ बना दिया आपने? तो उनको दिमाग में आया करे क्या, उन्होंने सारा स्पेशल रेट वाला छोड़ दिया 7 लाख में से। इसलिए वो आप स्पेशल रेट वाला आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, बाकी पे आपको 7 लाख मिले। क्लियर हुआ जी? ये कारण था, गलती मेरी है, क्योंकि 115 पहले जो 87 है 12,500, वहाँ पर ऐसा रूल नहीं है। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम पता है क्यों नहीं रूल था? द मोमेंट यू आर मोर देन 5 लाख पूरा 20% टैक्स लगता था। इसलिए क्योंकि 87 में रिलीफ दिया 7 लाख का, बट इफ इट इज मोर देन 7 लाख यू कांट चार्ज टैक्स फॉर मोर देन द एडिशनल इनकम। मोर देन द एडिशनल इनकम आपका वही है। आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 10,000 लग रहा है, यहां पर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 5,000 लग रहा है। ये तो लॉजिकली रॉन्ग है ना। उसको ठीक करने के लिए इन्होंने सारे स्पेशल रेट को वहां से हला दिया। लैंग्वेज गलत है, और लिखा वेयर यू कंप्यूट योर टोटल इनकम अंडर 115 BAC, यही लिखा है ना, BAC, एंड इट डज नॉट एक्सीड 7 लाख, यही लिखा है। नो डिडक्शन ऑफ दिस चैप्टर,
वो दिस चैप्टर आप 87A समझ रहे हैं, वो चैप्टर 8 है। दिस चैप्टर का मतलब है चैप्टर 12, और चैप्टर 12 स्पेशल रेट का है। इसलिए 5 फरवरी को जो ये 5 जुलाई को जो स्कीम चेंज कर दी, कईयों ने रिटर्न पहले भरी हुई है और 5 जुलाई के बाद वो टैक्स मांग रहा है। यही है ना, पिछले केस भी जो वो CPC से डिमांड आएगी उसके ऊपर, क्योंकि लॉ भूल गए चेंज करना कि ये लॉ तो ये बना हुआ है कि जी स्पेशल रेट वाला हम रिबेट में नहीं लेंगे। ये कारण है, स्पेशल रेट वाला रिबेट में नहीं लेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, लैंग्वेज गलती आपकी है तो आपको बेनिफिट देना चाहिए, नहीं तो लिखना चाहिए चैप्टर 12। देखिए क्या होता है, लेकिन मान नहीं रहे। कल भी बात हुई, इसे हमने गलती करी तो 5 जुलाई को करा, पिछली रिटर्न हम मांग लेंगे, अगर असेसमेंट ईयर का तो रूल तो एक ही होना है। ये चीज़ इसीलिए हुआ है। हाँ जी, बस ये हो गया सर। थैंक यू वेरी मच। जो करना होगा मैं बाद में भी कर लूँगा, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेडी का क्वेश्चन ले सकता हूँ, आपका नहीं। दे कैन आस्क क्वेश्चन। आप लेडी नहीं है सर, चलिए पूछिए लास्ट क्वेश्चन। आपको मैं बाद में बता दूं। हेलो हाँ। सर, अनलिस्टेड शेयर की ट्रांसफर वैल्यू में जंतरी वैल्यू ऐड करनी होती है 11 UA में, उसमें कुछ अमेंडमेंट आया हुआ है? कुछ समझ नहीं आया, मेरी आवाज नहीं आ रही ठीक। Unlisted- थोड़ा नीचे रखिए। सॉरी, अनलिस्टेड शेयर की ट्रांसफर अनलिस्टेड अनलिस्टेड शेयर वही रहे 24 मंथ्स, अनलिस्टेड में वही रहे 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। कैपिटल गेन नहीं, उसकी शेयर ट्रांसफर जो करनी होती है वो 50 CA लगेगा। और 11 UA। हाँ 11 जंतरी UA1 value, वो जंतरी 50 CA लगेगा। CA नहीं हटाया है, 5627 भी हटाया है। ओके सर, बाईबैक का यूज इसमें भी कर रहे थे लोग कि जो जाने वाला है वो 25% से कम है तो सर वी कैन टेक इट आफ्टर, वो दे आर इन हरी टू डू इट। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस। Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.